કેમ છો વાલા ભાઈઓ બહેનો? પેપર આપીને થોડાક દુઃખ અને થોડાક સુખ આ બંને વિચારો સાથે તમે બહાર આવ્યા હશો. કારણ કે વિભાગ 1 છે એ થોડુંક મુશ્કેલીવાળો હતો, જ્યારે વિભાગ બી એટલે કે આપણો હિન્દી વિષયનો જે વિષય વસ્તુનું જે પેપર હતું એ તમને બધાને આસાન લાગ્યું છે. અને આસાનનું મુખ્ય કારણ આપ સૌની મહેનત, એ મહેનત છે રંગ લાવી છે. અને ખાસ આપણે જે પીડીએફ લીધેલી હતી અથવા આપણા જે વિડીયો હતા હિન્દીના, એમાંથી પણ ઘણા બધા પ્રકારના એમસીક્યુ પૂછાઈ ગયા છે, જેથી કરીને પણ તમને ખૂબ સરળતા રહે છે. કારણ કે આપણે પહેલેથી જ કીધું હતું કે વિષય વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્નો પૂછાવાના હોય છે, તો એ પ્રમાણેના આખા એમસીક્યુ છે એ પૂછાઈ ચૂક્યા છે. અને તમે જે એ અનુભવી પણ છે, એટલે મારે ખોટી કોઈ એની બીજી વાતો કરવાની જરૂર રહેતી નથી. કારણ કે પેપરની અંદર ખૂબ સારા માર્ક્સ છે તમારે આવવાના છે, જે આપણી પીડીએફમાંથી બેઠા પ્રશ્નો પણ ઘણા બધા હતા. સાથે સાથે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની કોમેન્ટ હતી કે આ જ પેપરનું સોલ્યુશન છે લાવો. તો આજે આપણે જે 12/4/2026ના જે પેપર હતું 200 માર્કનું પેપર, એમાંથી આપણે પ્રથમ માર્ક એટલે કે પહેલો વિભાગ છે એનું સોલ્યુશન નથી કરતા, કારણ કે એના સોલ્યુશન કરવાવાળા ઘણા બધા છે. જ્યારે આપણે હિન્દી વિષયનું સોલ્યુશન છે એ કોઈ આપતું નથી, તો આપણે એનું સોલ્યુશન છે આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આમાં મેં જે કાંઈ જવાબો આપેલા છે એ મારો અંગત વિચાર છે. કદાચ એમાં પ્રશ્નના જવાબમાં થોડું ઘણું ડિફરન્ટ બની શકે, તો સંપૂર્ણ સાચો છે એવું માનવું નહીં, કારણ કે ટૂંક સમયમાં પ્રોવિઝનલ આન્સર કે આવવાની છે. પણ બની શકે ત્યાં સુધી જવાબની નજીક જવાના પૂરતા પ્રયત્નો કરેલા છે. તો જોઈએ આપણે હવે આ પેપર સોલ્યુશન અને તેની માહિતી. આપણે શરૂઆત છે એ આપણા બીજા વિભાગ એટલે કે 101ના પ્રશ્નથી છે શરૂઆત કરીએ. તમારે પ્રશ્ન કદાચ આડાઅવળા હશે. ડી વિભાગ પ્રમાણે મિત્રો આનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. પહેલું છે 101માં પ્રશ્ન છે, હિન્દી વિશ્વકોશ કા નિર્માણ और प्रकाशन किसने किया? તો એનો જવાબ આવે છે ડી એટલે કે નગેન્દ્રનાથ બસુ, જે આપણા પ્રયોજનકમૂલક હિન્દીનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, આપણે આપેલો પણ હતો. ત્યારબાદ છે જોહાનિસબર્ગ પહોંચને કે લીએ એક રાત કहाँ रुकना पड़ता है? स्टैंडर्स्टन. આ પણ તમે જોયું છે, આપણી પીડીએફનો જ પ્રશ્ન છે. નિમ્નલિખિત વાક્ય में से अशुद्ध वाक्य बनाइए. ય વિદ્વાન મહિલા હૈ. તો આની જગ્યાએ આ વિદ્વાન છે ને એ પુલ્લિંગ શબ્દ છે, એની જગ્યાએ આવશે ય વિદુષી મહિલા હૈ, એટલે એ જવાબ છે. બીજું છે નારીત્વ શબ્દ કા સંધિ વિગ્રહ કીજીએ. આની અંદર બી અને સી બંનેમાં કાંઈ જાજો ડિફરન્ટ જોવા મળતો નથી, એટલે કદાચ એ બની શકે. ત્યારબાદ છે દુનિયાભર મેં વિશ્વ પર્યટન દિવસ કો મનાયા ગયા. તો એમાં સી જવાબ આવશે 27 સિતંબર 2003. એ પણ પ્રયોજનમૂલકનો છે. ઉસકે शीतल तुहिन कणों को पंक्ति में रेखांकित शब्द तुहिन का मतलब क्या है? तो एમાં डी આવશે बर्फ. इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो એમાં सी कोटक. निम्नलिखित इकाई संबंधित सही पात्र नहीं ऐसा विकल्प पहचानिए. तो એમાં ડી આવે છે નીવ કી ઈટ હો તુમ દીદી, એમાં કૃષ્ણ એવું આવશે, બાકી બધા બરોબર છે. ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત प्रौद्योगिकी का पूरा नाम के संदर्भ में गलत विकल्प ढूंढिए. जो गलत विकल्प છે તો એમાં ई कॉमर्स इंटरनेट कॉमर्स, एम इंटर नहीं પણ इलेक्ट्रॉनॉट એવું છે આવશે. शब्द समूह के लिए एक शब्द का गलत विकल्प कौन सा है? તો એમાં પહેલું છે એ પેટ કા આગે की ओर बढ़ा हुआ भाग. બે ઢંગા ન કહી શકે, એને તોંદ એવું કહી શકે, જે આપણે ઘર પાઠની અંદરથી પૂછેલો પ્રશ્ન છે. रेडियम की आत्मकथा इकाई से संबंध में सही न हो ऐसा वाक्य पहचानिए. तो એમાં એ આવશે રેડિયમ से निकली 2 प्रकार की किरणें. 2 नहीं પણ 3 प्रकार આવશે. काव्य पंक्ति की पूर्ति कीजिए. એની અંદર ડી આવશે लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं. तो એમાં डी जवाब આવે. बाढ़ की संभावना काव्य में किस पेड़ की है? किस पेड़ की बात है? तो એમાં बी આવશે चीड़. संप्रदान कारक का उपयोग हुआ हो ऐसा वाक्य ढूंढिए. तो એમાં बी जवाब આવશે नीरज के लिए साइकिल लाया हो. ત્યાર પછી 115મો છે निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए. એની અંદર છે उसने जो मांगा था उससे मिल गया, જે આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં પ્રયોજનમૂલકની અંદર આપેલો છે. આ चंद्रशेखर आज़ाद को क्या कहते लेखक को चोट लगती है? स्वर्गीय. कदम मिलाकर चलना होगा कविता कौन से प्रकार की है? आह्वान गीत.
प्रगतिशील काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। सुब्रमण्य भारती। लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय के साथ क्या नहीं होता? तो डी आवश्य, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। अजंता गांव के पास कौन सी नदी है? बाघोर नदी। मित्रों, आ બધા જ આપણે પીડીએફમાં આપેલા છે, એટલે બધા જ મોટાભાગના પ્રશ્નો એમાંથી જ પૂછેલા છે। माटी के मूर्ते और लाल तार किन के रेखा चित्रों के संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी। मित्रों, આપણે છેલ્લે જે કવિ લેખક પરિચયનો વિડીયો જે બનાવીને અથવા આપેલો તમને પીડીએફ પણ આપેલી, ફ્રીમાં આપેલી, એમાં આ બધી જ માહિતી હતી। તો એનો પ્રશ્ન છે, कवित्री के अनुसार दुनिया के हर चमत्कार का सृजन कौन करते हैं? तो मजदूर खुरदरे हाथों से, એટલે કે ए। 123वां प्रश्न है, आजाद किन विषयों पर तर्क वितर्क को वाक विलास समझते थे? तो डी आवश्य, ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य। राम वृक्ष ने किसकी आज्ञा पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया? गांधी जी। भाई रे गाय तो लू, तो दूहे कौन? एनो जवाब से ए, वस्तु के उपयोग का ज्ञान न होना। 126 में आपका बंटी प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता? मन्नू भंडारी। डी जवाब आवश्य। छायावाद की झलक किसकी रचनाओं में नहीं दिखाई देती? तो एनी अंदर आवश्य डी, એટલે કે नागार्जुन। बाकीना ત્રણેય कवि છે छायावादी कवि है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप सदैव बेरुमत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बने रहे। कथन में बेरुमत का अर्थ क्या है? तो ए, એટલે કે किसी का लिहाज न करने वाला। जो बीत गई सो बात गई कविता हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से ली गई? सतरंगिणी। आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञापन तथा पत्रकारिता आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी अर्थात डी जवाब आवश्य, जनसंचारी हिंदी। 131वां है, इनमें से कौन सा उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ए जवाब आवश्य, में अध्येताओं की सिद्धि की जांच करना। 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सोपान प्रकल्प विधि का प्रथम सोपान है? एमा ए आवश्य, परिस्थिति का निर्माण। हम जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी 25% संकल्पनाएं श्रवण अनुभव पर आधारित रखती हो, ऐसा किसने कहा है? तो जवाब से प्रोफेसर जे वेबर। शिक्षण शास्त्रियों ने सामान्यतः मौन वाचन के जो प्रकार माने, इन प्रकारों में निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? डी, सामूहिक वाचन। प्राचीन काव्यों को पढ़ाने की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है जिसका उपयोग उच्च कक्षाओं में ज़्यादा मात्रा में होता है? ए, व्यास प्रणाली। त्याग शब्द का अर्थ सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो उसे पहचानिए। एमा बी जवाब आवश्य, कहानी, प्रसंग व उदाहरण द्वारा। 37वां से, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में किस घटक का समावेश नहीं होता? तो एमा बी, शैक्षिक आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एमा बी आवश्य, पठन प्रेम शिक्षक शिक्षार्थी की पठन अभिरुचि के विकास में अधिक सहायक होता है। 139वां, जीवन चरित्र, दृश्य, आत्मकथा लेखन में किस विद्या का उपयोग अधिक होता है? बी आवश्य, रूपरेखा विधि। अच्छे प्रश्न का लक्षण न हो ऐसा विकल्प ढूंढिए। तो एमा सी जवाब आवश्य, प्रश्न एक से अधिक विचार की पृच्छा करने वाला होना चाहिए। भिन्न अर्थ वाला शब्द पहचानिए। एमा बी आवश्य, साजिश। कबीर के संबंध में गलत विधान कौन सा है? तो वे परमानंद के शिष्य थे। कृतिकार के संबंध में सही जोड़ पहचानिए। एमा सी जवाब आवश्य, अजंता भगवत चरण उपाध्याय। मुहावरा का गलत अर्थ हो ऐसा विकल्प चुनिए। तो एमा डी आवश्य, खटिया खड़ी होना, એટલે કે इज्जत बिगड़ना, ये खोटो है। शब्द समूह और उसके अर्थ के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? बी, तेल रखने का एक छोटा बर्तन, ढीबरी। गलत विकल्प चुनिए। एमा बी जवाब आवश्य, गोवर्धन राम त्रिपाठी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। અહીંયા અમદાવાદની પણ નડિયાદ આવશે। समानार्थी शब्द की गलत जोड़ ढूंढिए। एमा ए आवश्य, उद्दिज, अंडज। पाठशाला शब्द का समास पहचानिए। सी, तत्पुरुष। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। बीरव्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। बी आवश्य। 150 है, व्यवहारिक पत्राचार के संदर्भ में गलत विधान चुनिए। एमा ए आवश्य। ત્યારબાદ 151 है, गलत विधान चुनिए। एमा डी जवाब आवश्य, संबोधन और अभिवादन नियंत्रण पत्र में होना अनिवार्य है। 152 है, गुलाब और बुलबुल कविता संग्रह किस कवि की रचना है? तो त्रिलोचन। बापू की कुटिया में अँ वासुदेवसी काउंस में आपेलो है। एक प्रश्न पण है कि त्रिलोचन का पूरा नाम, तो ये जवाब आम ज हतो आखो।
बापू की कुटिया में इकाई में बापू सेल्फ खानों में कौन सी किताब का उल्लेख नहीं है? तो एમાં सी रामायण। समास का सही विकल्प पहचानिए। तो एમાં जवाब आवशे सी गाँव गाँव अव्ययी भाव समास। विलोम शब्द की गलत जोड़ पहचानिए। तो एમાં आवशे आद्र क्रोश। शब्द अर्थ की सही जोड़ पहचानिए। एમાં आवशे तुहिन અને बर्फ। चार्ल्स टाउन से जॉनी बर्स किस साहित्य विद्या का अंश है? आत्मकथा अंश। देवनागरी लिपि में टाइप सर्वप्रथम कहाँ बने? तो एમાં जवाब आवशे यूरोप में। परशुराम लक्ष्मण संवाद गद्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? डी बालकांड। तत्सम शब्द की सही जोड़ पहचानिए अथवा बताइए। तो एમાં जवाब आवशे ए आंसू और अश्रु। रत्नजड़ित शब्द का समास पहचानिए। तो एમાં सी तत्पुरुष। हिंदी भाषा में प्रयुक्त डाकखाना शब्द मूलतः किस प्रकार के मिश्रित रूप है? तो डी जवाब आवशे हिंदी फारसी। गोपियों को बांसुरी किसके जैसी लगती है? तो बी जवाब आवशे सौतन जैसी। बापू की कुटिया में किससे बनी है? बांस और लकड़ी से। आप कृति एवं कृतिकार की दृष्टि से सही विकल्प चुनिए। तो एમાં सी जवाब आवशे घर भोलाभाई पटेल। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। सी गोपालदास सक्सेना का उपनाम? सी नीरज। बिल्कुल अनपढ़ होना कहावत का सही अर्थ है काला अक्षर भैंस बराबर, એટલે કે बी। निगाह में बांध लेना मुहावरे का अर्थ है डी सदा याद रखना। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों के आपसी नेटवर्क को क्या कह सकते हैं? इंट्रानेट। चंद्रशेखर आज़ाद इकाई के अनुसार सही नहीं है ऐसा वाक्य पहचानिए। तो ए वाक्य जे वह सही नहीं है। 172 विजय तिवारी रचित गज़ल इकाई कहाँ से ली गई? तो ए फल खाई सजर। 173 है आमरण समास का कौन सा भेद है? तो एમાં जवाब आवशे अव्ययी भाव समास। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी कुटिया में कहाँ बैठकर पंक्तियाँ लिख रहे थे? पायताने। बी गुरुपर्व पाठ के अनुवादक कौन है? ए जवाब आवशे इजहार अहमद नदीम। तो आ क्यांथी प्रश्न लीधो कई खबर न पड़ी। 176 लेखक श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एમાં डी आवशे राग दरबारी। 77 है इनमें से कौन सा अंग्रेजी साप्ताहिक है जिसके संपादन में कवि सुब्रमण्य भारती ने सहयोग दिया? बी आवशे यंग इंडिया। फर्क कहानी का मुख्य संदेश क्या है? डी मनुष्य भेदभाव मानता है जबकि पशु नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी। हिंदी में आंचलिक कथा की नींव किसने रखी? सी फणीश्वरनाथ रेणु। 181 है त्रिलोचन जी का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह। मैं તમને અગાઉ પણ કીધું હતું કે આ પ્રશ્ન આવશે તો એમાંથી નામાંથી હતો। 182 संगीत की ध्वनि से रिझकर अपना शरीर कौन न्यौछावर कर देता है? सी मृग। चारों ओर से घिरा हुआ मैदान शब्द समूह के लिए एक शब्द अहाता। बी जवाब है। जिन शब्दों का विग्रह करते समय किसी खास व्यक्ति का बोध होता है ऐसे शब्द को बहुव्रीहि समास कहते हैं। ड्राफ्ट का शब्द का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द ए प्रारूप। भ्रमित पथिक किसकी प्रमुख रचना है? डी सद्गुरु शरण अवस्थी। किसी चमत्कार लहर की उत्साह में छुपते इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का उत्साह का क्या अर्थ है? तो डी उत्साह। राजनीतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए इक्र। 189 गोरे अंग्रेज द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन गांधी जी ने किस कृति में किया है? सत्य के प्रयोग એટલે કે सी ની અંદર। 190 सोमाबुआ किस कहानी का प्रमुख अमर पात्र है? अकेली। अधिगम सीखने अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है यह परिभाषा किस विद्वान की दी? तो सी आवे छे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। जहाँ एक शिक्षक शाहजहाँ के विषय में पढ़ाते समय ताजमहल से शुरू करता है शिक्षक ने इस प्रक्रिया में कौन से शिक्षण सूत्र का उपयोग किया? तो डी है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षक नए शब्दों की संरचना कर सकेगा यह अपेक्षित परिवर्तन किस उद्देश्य से आधारित है? तो बी आवश्यक बोधात्मक उद्देश्य। पारदर्शी कागज पर चित्र बनाकर कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करने हेतु शिक्षक किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग कर सकता है? तो एમાં जवाब से ए ओवरहेड प्रोजेक्टर। वाक्य में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति के बारे में
शिक्षार्थियों को समझाने हेतु शिक्षक किसके बारे में संकल्पना स्पष्ट करेंगे? तो जवाब आवश्य ए अन्विति। 196 निम्न में से पठन प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है? तो मैं जवाब आवश्य डी अनुप्रयोग। અને 197મો પ્રશ્ન છે कक्षा अध्ययन में निगमन पद्धति के विनियोग का तीसरा सोपान पहचानिए। तो एમાં જવાબ આવે છે परीक्षण। ત્યારબાદ 198મો છે भाषा शिक्षण की परोक्ष पद्धति के बारे में कौन सा विधान उचित नहीं है? तो एમાં जवाब આવે છે सी कि भाषा की संरचना सिखाने की उत्तम पद्धति। 199મો प्रश्न है गहन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एમાં जवाब આવે છે सी એટલે કે ધ્વનિ શબ્દ वाक्य रचना का विश्लेषण। અને અંતે 200મો પ્રશ્ન છે इनमें से कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री है? तो जवाब આવે છે डी એટલે કે મોબાઈલ। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે હિન્દી વિષયના જે MCQ હતા આપણા વિભાગના બીજા વિભાગના વિષય વસ્તુને એનો તમારા બધાને બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને સોલ્યુશન આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। ફરીવાર કહું છું ફાઇનલ આન્સર કે રાજ્ય સરકારની રહેશે। તેમ છતાં તમને એક આઈડિયા આવે કે આનો જવાબ આ બને છે મેન્સ માટે આપણે સિલેક્ટ થશો કે કેમ એના માટે વિડીયો બનાવેલો છે। જો તમને સારો લાગે તો અવશ્ય લાઇક શેર કરજો, ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અને હવે પછી આપણે ધોરણ 9-10ના મુખ્ય પરીક્ષાના વિડીયો પણ આપણે છે સમયાંતરે મૂકતા રહીશું।